Okay, so today we are going to do cooperative principles by Grice, or you can say it is also known as Grice maxims as well. Okay, there are multiple names and conversational implicators as well. ठीक है, लेकिन बेसिकली ये cooperative principles के नाम से या Grice के maxims के नाम से ज़्यादा मतलब इस well known है ये principles. Now, first of all, the rules of conversation. As you already know, that grammar is rule governed, and in language in conversation we have to follow grammar, right? That is the grammar rules. But along with that, we follow some social rules as well. जो हमने डिस्कस किया था ब्राउन लेविंसन में कि सोशल डिस्टेंस और रिलेटिव पावर जो तीन वेरिएबल्स थे, ठीक है, those variables are always there when we are having any conversation, right? So the use of language is governed by social rules, a set of conventions shared by language users, right? यानी जो कल्चर वाइज जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जैसे कराची, विद इन कराची अगर बात करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी नो ईच अदर, वी नो आवर कल्चर, right? So the conventions, we have to follow those conventions and social rules. These conventions change and evolve naturally. ये सिखाई नहीं जाती, ये हमें खुद ब खुद ही ऐसा ऐसा समझ में आ जाती है. Children are not explicitly told these conventions but acquire them by trial and error, like many other social conventions. Now, this is known as the theory of conversational implicature. Now, how is it possible to mean more than we actually say? How is this possible? हमने डिस्कस किया कि there are multiple meanings, right? एक ही बात में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इलिक्वेशनरी फोर्सेस होती हैं, बाज़ औक़ात एक ही के लिए दो या दो से ज़्यादा इलिक्वेशनरी फोर्सेस होती हैं. सो हाउ इज दिस पॉसिबल? This is a question that was asked by Paul Grice. So he aimed to understand how a speaker's meaning rises from sentence meaning. ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने इनिशियली में जब लेक्चर के दिस सेमेस्टर के स्टार्ट में हमने किया था कि semantics is sentence meaning and pragmatics is speaker's meaning, right? So he's trying to work out that how sentence meaning change into speaker meanings and what is implicature. Rice proposed that many aspects of a speaker's meaning result from the assumption that the participants in a conversation are cooperating in an attempt to reach mutual goals, or at least are pretending to do so. Okay, so basically, the conversation goes on by the assumption that is there in the mind of the speakers that we have to complete this goal, we are having some conversation. Conversation is basically a cooperative behavior and therefore proceeds by rules of cooperative conduct. And Grice has called this as a cooperative principle. Now, the basic question or the basic sentence or the basic idea of cooperative principle is that make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. तो बेसिकली जैसे आपको याद होगा हमने जो ऑस्टिन की फेलिसिटी कंडीशंस की थी, उसमें भी यही था कि जो कन्वेंशंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करें और उसी प्रॉपर कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? तो इस वही तकरीबन बातें ये हैं कि मेक योर कन्वर्सेशनल कंट्रीब्यूशन सच एज इज रिक्वायर्ड एट द स्टेज एट विच इट अकर बाय द एक्सेप्टेड पर्पस और डायरेक्शन ऑफ द टॉक एक्सचेंज, ठीक है? Then only it will be achieved. Now he has mentioned four parts: maximum of quality, maximum of quantity, maximum of relevance, and maximum of manner. These are the basically the cooperative principles which are based on these four maxims of Grice. ठीक है? अब ये क्या है? देखते हैं. Number one is the maxim of quality. Tell the truth. Do not say what you believe to be false. Do not say for which you lack adequate evidence. इसका क्या मतलब हुआ? कैसे पॉसिबल है ये? जी, कम ऑन बेटा.
ये अब्दुल आहद को या अच्छा सही Do not say what you believe to be false. क्या मतलब है इसका? Come on, it's so simple. Come on बेटा, कोई कुछ तो बोले। Yes, ma'am. ये मैंने पूछा है कि इसका क्या मतलब है। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? टेल द ट्रूथ, डू नॉट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स, डू नॉट से फॉर व्हिच यू लैक एडिक्वेट एविडेंस। इसका मतलब क्या है? The maximum of quality, tell the truth. Do not say what you believe to be false. Ma'am, it is for do not give your opinion. नहीं नहीं मैम ये जो प्रॉमिसिंग वाला सर्च किया था मुझे उसकी वो लग रहा है। ये बेटा ये बिल्कुल अलग मतलब वो है। ग्राइस के मैगजीन्स हैं ये, पुरानी किसी चीज वो नहीं है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उससे आप रिलेट तो कर सकते हैं लेकिन दिस इज नॉट द सेम। रिलेट कर रहे हैं इसमें, हम रिलेट कर रहे हैं कि मतलब जो आप बोल रहे हैं आपको मतलब आप बिलीव करें कि वो गलत नहीं है। आप जो भी बोल रहे हैं आपका अपना बिलीव होना चाहिए उस पर। अच्छा, आप प्रॉमिस के सेंस में कह रही हैं। नहीं देखें, ये अगर देखें ना, ये जो था, एक मिनट, यहाँ क्या है? मेक योर कन्वर्सेशनल कंट्रीब्यूशन सच एज इज रिक्वायर्ड। कंट्रीब्यूशन इन अ कन्वर्सेशन, ठीक है, एट द स्टेज एट विच इट अकर्स बाय द एक्सेप्टेड पर्पस, व्हाटएवर द पर्पस इज, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। Yes, ma'am. सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी, whatever you are saying, whatever you are discussing, whatever is being asked and you are replying, tell the truth. Do not say what you believe to be false. अगर मतलब झूठ ना बोले, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जो भी किसी से डिस्कस कर रहे हैं, वो सच हो, ठीक है। Do not say for which you lack adequate evidence. जिसके आपके पास कोई सबूत ना हो, ऐसी कोई भी बात ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि किसी ने पूछा कि भाई सर जफर कहाँ है, ठीक है, और मैं ये कह दूं मैं क्लास में हूँ, ठीक है। क्लास में किसी ने पूछा कि मिस सर जफर ऑफिस में, और मैं कह दूं कि हाँ ऑफिस में, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम पे ऑफिस में है या नहीं है, बिकॉज आई लैक एडिक्वेट एविडेंस, ठीक है। Yes, So ma'am. we should speak or say which for which we have evidence for what is true, ठीक है। What is ये नहीं है, truth or what is which has evidence? यस, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। यहाँ इस केस में ये है कि ठीक है, मैं 5 मिनट पहले जब आई थी तब बैठे हुए थे सर, लेकिन इस 5 मिनट में हो सकता है वो किसी काम से चले गए हों, जरूरी तो नहीं है कि वो बैठे हुए ऑफिस में, ठीक है ना। Normally we do such things, ma'am. हाँ, सो बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग दिस मैक्सिम, ये हो जाता है गलत। फिर अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरी बात पे चला गया और फिर वहां सर नहीं है, तो क्या कहेंगे इसने गलत बोला था। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती है, इसलिए हमारी कन्वर्सेशन सही नहीं होती, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वी डोंट फोकस ऑन दैट, वी आर नॉट एक्चुअली टेलिंग अ लाई, वी आर एक्चुअली लैकिंग द एडिक्वेट एविडेंस, ठीक है। सो डू नॉट से फॉर विच यू लैक एडिक्वेट एविडेंस एंड डू नॉट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स। टेल द ट्रुथ, जो भी बात है वो सही से बताते। भाई सीधा कहते भाई मैं 5 मिनट पहले आई थी तो सर थे, अब नहीं पता, ठीक है। अब नहीं पता। हाँ, ये सही हो जाएगा। Okay, I hope this is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. Okay, now let's look at the second one. अच्छा, एक एग्जांपल इसकी और डिस्कस कर लेते हैं क्वालिटी की। मैं बताऊं? जी बोले बोले। मैम वो जब हमारे अक्सर राउंड पे होते हैं और वो पूछती हैं कि टीचर कहें, तो हम कहते हैं वो आ रही हैं। एक्चुअली वो आ ही रही होती हैं, लेकिन हाँ। वो समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन एक्चुअली हाँ आ रही है, हमको लगता है जैसे रास्ते में,
वो आपका कहने का मकसद ये होता है कि जी वो शी इज रेडी एंड शी इज कमिंग ऑन हर वे और शी इज कमिंग, दो अलग चीजें हैं, ठीक है। यस मैम, Here he actually focus on Grice is focusing on the implied meaning कि सिंपल कन्वर्सेशन में कैसे डबल मीनिंग क्रिएट हो जाती है। हम यहाँ डबल मीनिंग हो गई ना इस सेंटेंस में, यस मैम, आ रही है का मतलब है कि रास्ते में है या वो आने जी वाली है, ठीक है। जी। Yes, ma'am. एनी अदर एग्जांपल? एनी अदर एग्जांपल? अब कोई आपसे कहता है कि भाई कल बल्कि शाम में, कल को छोड़ें, शाम में बोलते हैं। अब आपकी अम्मी ने सुबह पूछा आपसे कि भाई शाम में बाजार चलोगी मेरे साथ, आप मैं क्या तो कहेंगे? कहूँगी हाँ। हाँ Yes. ठीक है। और कोई और रिप्लाई? देखो फ्री हुई तो मैम देखेंगे। हाँ, चलूंगी अगर मैं फ्री, अगर मेरा कोई और काम नहीं हुआ, ये है सही बात, ठीक है। अगर एंड टाइम पे आपका कोई काम आ गया तो फिर आप कैसे जाएंगी? फिर वो हो जाएगा फॉल्स। false. और फिर की लड़ाई। बिल्कुल सही है ना। तो इसलिए हमें बोलते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वी शुड टेल द ट्रूथ सो दैट थिंग्स विल नॉट बिकम फॉल्स लेटर ऑन। ओके, यस मैम, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैक्सिम, दैट इज द मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी। Say just as much as is necessary. ठीक है, make your contribution as informative as is required for the current purpose of the exchange. Do not make the contribution more informative than is required. ठीक है, means इतना बोलें, इतना बताएं, इतना कहें जितनी जरूरत है, ना उससे यस ज्यादा मैम। ना उससे कम। मैम ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनी एग्जाम्पल आप बताएं पहले, आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। यस, मैम कोई मैम पूछे हमसे कि खाना अच्छा बना है और हम बोले खाना अच्छा नहीं बना, तुम अच्छा खाना नहीं बनाती, हम दो चार बातें और बता दें, ये बोले कि नहीं खाना अच्छा नहीं बना, इतना सा बोल दें बस, जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, हम चार बातें और बोल देते हैं। हाँ सही सही। मैम या जैसे बस सही है। टीचर्स बताती हैं पेपर्स के लिए कोई भी टॉपिक्स या सिलेबस बताते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उतना ही बताएं कि जितना पेपर में आना है, बंदे ज्यादा बताते हैं तो हम लोग बर्डनाइज होता है। ये तो बिल्कुल ही अलग केस है। देखिए उस केस में जो है ना, हम मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, आप ये पूछते हैं मीन्स क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो हम Yes. इम्पोर्टेंट सारा बता देते हैं। भाई अब इम्पोर्टेंट का मतलब ये आपने ये तो नहीं पूछा ना पेपर में क्या आएगा। अगर यस क्वेश्चन सर। ये होगा कि पेपर में क्या आएगा तो फिर आंसर ये हो सकता है कि क्या क्या आएगा, लेकिन ऐसा कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंट है, तो मेरा जवाब तो हमेशा यही होता है कि सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी किसी का सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आएगा। हाँ ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा ये, मतलब मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी फॉलो हो रही है यहाँ। और कोई? Okay. अब जैसे आप इंटरव्यू में गए, कोई इंटरव्यू देने गए हैं आप, जॉब इंटरव्यू, वो आपसे यस पूछें व्हाट इज योर नेम, और आप शुरू हो गए, अपना नाम भी बता रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन भी बता रहे हैं, अपने प्रीवियस जॉब्स भी बता रहे हैं, तो क्या ये मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी है? नहीं। नहीं Yes. है। यस, कैसे है यस? नहीं है, हाँ, नहीं है मैम। नहीं है। नहीं है मैम। नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि पूछा था सिर्फ नाम। अगर आपसे ये कहा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि ज्यादातर यही पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अब आप सोच के गए थे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलेंगे तो मैं ये जवाब दे दूंगी, और उन्होंने पूछ लिया सिर्फ आपका नाम और आप शुरू हो गए, तो इट मींस यू आर नॉट जी फॉलोइंग द क्वांटिटी मैक्सिमम, ठीक है। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से, ओके। सो यस मैम। Yes, ma'am. maximum of quantity means saying or making your contribution as much as is required and as much as is informative, ठीक है, not यस more मैम। not less। क्लियर हो गया? Okay. Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, एक Yes, ma'am. एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे क्वांटिटी की।
मतलब ठीक इससे है। ऐसा भी होता है ना कि जब हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं तो लोग कहते हैं बस ज्यादा नहीं बताओ, जितना पूछा वही बताओ। हाँ नॉर्मली वो ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल, तो वो मैम इसीलिए होता है ना कि हम क्वांटिटी मैक्सिमम फॉलो नहीं कर रहे होते। अगर हम क्वांटिटी मैक्सिमम फॉलो कर लें तो हमें ये सुनना ही ना पड़े, ठीक है ना? मैम हमारी सोसाइटी में ये रूल फॉलो नहीं होता, तो हम जरूरत से ज्यादा ही बताने की कोशिश करते हैं हाँ, या सुनने असल में तो हमारे रिलीजन में तो असल में ये सारी चीजें मौजूद हैं जो इन लोगों ने मैक्सिम्स और रूल्स और ये वो बना के पेश किए हुए हैं और यस हम सर, उनको बैठ के पढ़ रहे हैं। पोलाइटनेस। और मैम पोलाइटनेस। वो पोलाइटनेस, मैम इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये वाला जो कोर्स है ना, ये इस लेवल पे सबके पास होना चाहिए। सबको इस बिल्कुल। चीज का पता होना चाहिए, जस्ट मास्टर्स लेवल पे इंग्लिश वालों को नहीं, सबको ये पढ़वाना चाहिए। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि इस लेवल पे नहीं, इससे कम लेवल पे मैट्रिक इंटर पे होना चाहिए और वो होना हमारे चाहिए। रिलीजन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो इन्होंने वो चीजें हमारे ही इस्लाम के उसमें से ही निकाली है सारी चीजें, हमारे ही यस उसमें है मैम। सारे रिलीजन में, लेकिन हम लोग वो फॉलो नहीं करते, हम ये वाली चीजें फॉलो करते हैं। ये भी सिर्फ जो पढ़ते हैं वही फॉलो कर लें तो कर लें, वरना तो वो भी नहीं करते हैं। अच्छा, क्वांटिटी की एक और एग्जांपल, जैसे अगर आप किचन में बर्तन धो रही हैं, ठीक है, और बेल बजी, तो आपकी अम्मी ने कहा कि बेल बजी है देखो, तो आप क्या कहेंगी? कौन है? हाँ, कौन आया है? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि मतलब जैसे मेरी मदर कहें कि कौन आया देखो, हाँ ठीक है, तो फिर आपका क्या तो हम रिप्लाई होगा? मम्मी बर्तन धो रहे हैं। अम्मी बर्तन धो रही है। मम्मी जाके इस देख। केस में इस केस में मैं बर्तन धो रही हूँ या अम्मी मैं बर्तन धो रही हूँ, इस केस में क्वांटिटी मैक्सिमम फॉलो हो रहा है या नहीं? हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हो रहा है मतलब ही ये क्योंकि है जी, कि आप नहीं जा सकती। बस ये नेगेटिव पोलाइटनेस में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। ऑफ रिकॉर्ड में, नेगेटिव में नहीं, ऑफ रिकॉर्ड में। ऑफ रिकॉर्ड ठीक है मैम। हाँ, ऑफ रिकॉर्ड में आपने एम्बिग्यूस कर दिया ना, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपने कवर करके मेटाफर और वो सब यूज करके बोल दिए, एम्बिग्यूस करके। मैम लेकिन इंटेंशंस तो उसकी यही है ना कि हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते नहीं बोला ना, बोला ये कि मैं बर्तन धो अच्छा, रही हूँ, ठीक ठीक है। इसलिए ऑफ ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। अगर कहती है नहीं अम्मी प्लीज आप देख लें मैं बर्तन धो रही हूँ, तो फिर हो जाता है नेगेटिव पोलाइटनेस। नेगेटिव पोलाइटनेस सही मैम। ठीक है। यस। यस अच्छा, मैम। अब आगे ये एक एग्जांपल और देख लें। मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही इसमें डिस्कस हुई है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? Pat, I finished my algebra. Mom, well, get busy and finish your English too. अब इसमें क्या है? मैम फर्स्ट वाले में तो मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी फुलफिल हो रही है। देखिए, अच्छा एक चीज को और मैं बता दूं कि क्वेश्चन को नहीं हम फोकस करते, हम बेसिकली आंसर को उसके फोकस करते हैं, ठीक है, या उस आंसर के रिप्लाई में जो हो उसको फोकस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम यूजुअली मैक्सिम्स में फोकस नहीं करते, ठीक है। यस तो मैम, डिड मैम यू आंसर पे ही कह रही हूँ। हाँ बोले। हो आई रही है फिनिश मैम। माय अलजेब्रा इज द मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी फुलफिल हो रही है मैम। हो रही है। क्वांटिटी फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। तो क्या होना चाहिए था आंसर? मैम क्वेश्चन में ये है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो यस और नो होना चाहिए था। हाँ वेरी गुड। किसने बोला ये? अफसा ने? आमना फरी। आमना जी, आमना बिल्कुल। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? यस, नो, फिर आगे बेशक चलो कह लें, और उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ यस क्वेश्चन मैम। है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ठीक है। तो यस यहाँ मैम। क्वांटिटी ऑफ सॉरी मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी फॉलो नहीं हो रही। व्हाट अबाउट क्वालिटी? क्वालिटी फॉलो हो रही है? नहीं मैम, नहीं हो रही। क्यों? क्यों? क्वालिटी में क्या होता है? ट्रुथ। डोंट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स। मैम उसने हो रही है मैम इसमें तो, क्योंकि इसने ट्रुथ बोला है ना, मतलब इसने सिर्फ अलजेब्रा को फिनिश किया है। बिल्कुल, यहाँ So, मैक्सिमम क्वालिटी फॉलो हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी को नहीं बल्कि क्वालिटी को फोकस किया जा रहा है, ठीक है। आई फिनिश यस माय अलजेब्रा, उसने ये नहीं बोला कि मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं,
लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, उसने ये कह दिया कि आई फिनिश माय अलजेब्रा। इट मींस होमवर्क तो कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, लेकिन आधा कर लिया है। देन मॉम सेड वेल गेट बिजी एंड फिनिश योर इंग्लिश टू। ओके, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. So the Yes, ma'am. child did not say that her English homework is not done, nor did she imply it. ठीक है, इंग्लिश की तो बात ही नहीं है उसने कहीं पे भी। लेकिन nevertheless her mother is entitled to draw this conclusion based on the combination of what the child actually said and the cooperative principle. उसको खुद ही समझ में आ गया मदर को कि अच्छा अलजेब्रा का कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है इंग्लिश का फिनिश नहीं हुआ है। तो she replied that finish your English too. Okay. Yes, Now ma'am. next maxim is the maxim of relation or relevance, that is stick to the point. अब इसका मतलब क्या है कि मेक योर कंट्रीब्यूशन रेलिवेंट। अभी जो मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी कि मैं बर्तन धो रही हूँ, Yes, sir. ये रेलिवेंट है या नहीं है? मैम है रेलिवेंट। बिल्कुल रेलिवेंट है, ठीक है। तो दिस इज इंक्लूडेड इन द मैक्सिम ऑफ रिलेशन और रेलिवेंस, ठीक है। एनी अदर एग्जांपल? Ma'am, like the one that you have given now. Ma'am, have you completed your homework? हाँ, This one is also related to the point. बिल्कुल Stick to the उसमें point. बिल्कुल उसमें मैक्सिम ऑफ रिलेशन है, रेलेवेंस है, बिल्कुल। Yes, ma'am. एनी अदर एग्जांपल? मैम जैसे हम वही हफ्सा वाली बात हम पूछते हैं पेपर में क्या आएगा, यू सेड पेपर में सब कुछ आएगा, दैट इज रेलेवेंट टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। बिल्कुल, ये भी ठीक है। और बाकी लोग कुछ बताएं, कोई और एग्जांपल दें। कम ऑन, चलें आगे चलते हैं। Look at this example. The maximum of relevance is behind the implication of this letter of recommendation. अब letter of recommendations जो हैं वो क्या होते हैं कि when you are recommending someone, right? Yes, sir. Means you are telling the good qualities of someone, right? This is a classical Yes, sir. example that dear colleague, Dr. John Jones has asked me to write a letter on his behalf. Let me say that Dr. Jones is unfailingly polite, is neatly dressed at all time, and is always on time for his classes, right? So here is relation maxim observe, follow हो रहा है? Yes, ma'am. कैसे? मैम लेकिन ये मैम जैसे ये वाली मैम डॉक्टर जॉन्स इज अनफेलिंगली पोलाइट, इज नीटली ड्रेस्ड, मैम ये रेलेवेंट टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट नहीं है। कैसे? कैसे? रिकमेंडेशन मैम, रिकमेंडेशन के लिए ये चीजें नहीं नीडेड। अब यहाँ पे असल में जॉब के मतलब वो जॉब रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है ना, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिज क्वालिटीज आर देयर। मैम ये जो दो है ना, अनफेलिंगली पोलाइट एंड इज ऑलवेज ऑन टाइम फॉर हिज क्लासेस, अगर इससे हम देखें तो मैम ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये स्टिक टू द पॉइंट है, लेकिन इज नीटली ड्रेस्ड एट ऑल द टाइम्स मे बी ये इररिलेवेंट हो या हो सकता है रेलेवेंट हो अकॉर्डिंग टू द जॉब। अच्छा, एनीवन एल्स? कम ऑन, कोई और बताएं कि इसमें मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस और रिलेशन है या नहीं है? यस मैम है रिलेशन और रेलेवेंस मैक्सिमम है। किस बेसिस पे? और कोई मैक्सिमम है इसमें? अच्छा जी, तो क्या समझ में आया फिर यहाँ पे? मैम इसमें मैक्सिमम
बोले बोले। मैम इसमें मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी एंड मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी फुलफिल हो रही है। बिल्कुल, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन तीनों ही है, ठीक है। अगर वो ये इस तरह से लिखते अनफेलिंगली पोलाइट को और मजीद एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ये है वो है करते हैं, और टाइम के लिए बाकी मतलब उसकी उनकी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ होता, तो इट मींस क्वांटिटी फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। जी क्योंकि रिकमेंडेशंस लेटर्स आर यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ठीक है। तो ये टू द यस मैम पॉइंट है, इसमें उसकी Yes, ma'am. कैरेक्टर्स को फुली एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड इट इज नो डाउट रेलेवेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द रिकमेंडेशन, ठीक है। यस So the person reading this letter assumes that all the relevant information will be included. So the maximum of quantity and relevance lead one to suspect that this is the best that the professor can write. ठीक है, so this is the best how it can be expressed. अगर मजीद qualities होती, मजीद कुछ होता तो वो भी शायद in short explain किया हुआ होता. Now the last is maximum of manner, that is be clear, avoid obscurity, avoid ambiguity, be brief, be orderly, ठीक है। so whatever you are saying there should be no ambiguity. जो हमने बात की थी उसमें ऑफ रिकॉर्ड में, ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, ambiguous होता है, मेटाफर्स एंड हिडन वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल मेटाफर होते हैं, हिडन वर्ड्स होते हैं, यूज हुए हुए Either they are indirect. बिल्कुल। तो ambiguous. ये हाँ, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, यानी मैक्सिमम ऑफ मैनर सेज दैट यू हैव टू से anything and everything clearly, right? There should be no ambiguity, there should be no obscurity, nothing should be vague, everything should be clear and brief and orderly. अगर brief होगा तो खुद ब खुद ही चीजें clear होगी, जितना ज्यादा lengthy Yes, ma'am. conversation होगी, lengthy replies होंगे, उतने ज्यादा वो ambiguous होते जाते हैं, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इसकी एग्जांपल कोई एग्जांपल? Maximum of manner. जी बेटा, एग्जांपल, कम ऑन। यस मैम। मैम लाइक जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि कोई चीज मैम कोई चीज हमसे खराब हो जाती है, एंड समवन आस्क, या हमारी अम्मी पूछ लें कि ये किसने तोड़ी है, तो हम बता देते हैं कि इसने तोड़ी है या मैंने खराब की है, या हम नाम डायरेक्टली ले लेते हैं। तो इट कैन बी नाम, डायरेक्टली नाम ले लेना या बता देना कैन बी क्लियर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने वो देखे होंगे एड्स यकीनन, जैसे फ्लैट्स के और प्लॉट्स वगैरह के ऐड होते हैं, ठीक है। तो उसमें जी लिखा मैम। होता है चंद कदम के फासले पे, ठीक है। जी किसी मैम। भी जगह से बोलते हैं कि अबुल हसन अस्फानी रोड के साथ या गुलशन इकबाल से चंद कदम के फासले पे, तो ये जो चंद कदम का फासला, क्या ये चंद कदम ही होता है? चंद कदम का मतलब ये है कि यू कैन इजीली, नहीं, right? But that is not actually, the things are not clearly mentioned there, ठीक है। क्लियर जो है इस सूरत में होगा जब आप पूरा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट राइट सब बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर आपसे एड्रेस, इस एग्जांपल में वापस आती हूँ मैं, एक और पहले एग्जांपल डिस्कस कर लूँ। अगर कोई आपसे रास्ता पूछता है, ठीक है, और आप कहते हैं कि वहां से जाके राइट पे टर्न, पहले राइट पे टर्न हो जाए, फिर लेफ्ट पे टर्न हो जाए, फिर अगेन लेफ्ट पे टर्न होंगे तो आ जाएगा। तो अब इज दिस क्लियर? नो, नो मैम। है ना। क्लियर तब होगा जब आप बताएंगे कि कहाँ से राइट पे टर्न होना है, किस जगह से लेफ्ट पे टर्न होना है, ठीक है। तब पूरा प्रॉपर्ली आप मेंशन Yes, sir. करेंगे, देन इट मींस यू आर फॉलोइंग द मैक्सिमम ऑफ मैनर, ठीक है। अब मैम हम मैक्सिमम ऑफ मैनर में डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है, व्हाटएवर यू आर सेइंग, ठीक है। बस वो क्लियर होनी चाहिए ठीक है बात, मैम। उसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ ना हो। अब अगर वो है
जैसे अभी हम बात कर रहे थे चंद कदम के फासले पर, तो वो चंद कदम तो नहीं, वो आप 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद जाके आता है, तो कदम तो नहीं है वो, तो ड्राइविंग में भी आपको Yes, 10-15 ma'am. मिनट लगते हैं, ठीक है। तो दिस इज, इट मींस Yes, ma'am. दैट देयर इज समथिंग एम्बिगुअस इन इट, इट्स नॉट क्लियर। क्लियर तब होगा जब आप क्लियरली मेंशन करेंगे चीजें, एंड ठीक है। मैम जिसमें आपने बोला मैम, इसमें आपने बताया ना कि लेफ्ट टू राइट एंड आप लेफ्ट चले जाए राइट चले, तो वो ब्रीफ तो नहीं हुआ ना? हाँ, ब्रीफ भी नहीं है, बिल्कुल ये भी बात है। जब तक आपकी क्लियर और ऑर्डर बी ऑर्डरली, जिस ऑर्डर में होनी चाहिए। अब जैसे रेसिपीज हैं, अभी बीएस वालों ने उसकी एग्जांपल दी थी रेसिपीज की। अब रेसिपी में अगर ऑर्डर फॉलो नहीं होगा तो क्या वो चीज डिश सही बन सकती है? नहीं, नहीं। क्योंकि वो क्लियर भी नहीं होगी, वो प्रोसेस उसका क्लियर ही नहीं होगा अगर रैंडमली आप स्टेप्स बता देंगे। सो इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी ऑर्डरली एंड ब्रीफ। ब्रीफ होती है तो चीजें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगी। ओके, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली हम बोल दे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर विदाउट एनी एम्बिग्युइटी, ठीक है। So Yes. these were the 4 maxims of Grice, and yes, he observed the difference between what is said and what is meant to show that people actually do follow these maxims in conversation, ठीक है। So basically he has find out the difference between what is said and what is meant, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ what is said and what is meant different हो जाएगा। तो उसका तो फोकस ही Yes, है ma'am. कि अगर Yes, ma'am. हम ये मैक्सिम्स हैं, अगर ये मैक्सिम फॉलो नहीं करते तो फिर क्या होता है? तो फिर अगर फॉलो हो रहा है तो ऑब्जर्व्ड है, नहीं फॉलो हो रहा तो वो वॉयलेटेड है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर टुडे, ठीक है। Okay. Yes, ma'am.